Good morning, my dear students. Welcome to Parth Online Tutorials. In today's class, we're going to start a new chapter of class 8, that is combustion and flame. It is somewhere linked up with the previous chapter, that is coal and petroleum. Okay, so let's start with this chapter. In this chapter, we're going to see some different topics as compared to the previous chapters. In this chapter, we're going to cover combustion, extinction of fire, flame, calorific value, types of fuel, and in the last, impact of burning fuels. Okay, so in this chapter we will cover these topics. In today's class we're going to start with the first topic, that is combustion, and our question arises in our mind, that is what is combustion. Combustion क्या है? It is the process of burning of substance in which you get heat and light as a final product. This type of process is known as combustion. कंबशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अगर हम किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं या उसको जलाते हैं, यू विल गेट हीट एंड लाइट. यू विल गेट हीट प्लस लाइट. दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कंबशन. इसको हम क्या बोलते हैं? कंबशन. हर सब्सटेंस बर्न नहीं होता, हर सब्सटेंस नहीं जलता. वी कैन बर्न द वुड बट वी कैन नॉट बर्न द आयरन. वी कैन नॉट बर्न द स्टोन. हम नहीं कर सकते, हम पत्थर को नहीं जला सकते. वी कैन नॉट बर्न द आयरन, हम आयरन को नहीं जला सकते. बट वी कैन इजिली बर्न द वुड और प्लास्टिक. सो वी हैव टू डिफरेंशिएट द सब्सटेंसेस इनटू टू पार्ट्स. We have to divide the substances into two parts. Number one, combustible substance. Combustible substance. They are the substances which we can burn easily in the presence of oxygen, in the presence of air. That type of substances are called combustible substances. Example, wood, paper, your fuels. These are combustible substances. And substances that cannot burn in the presence of oxygen or air or anywhere, that type of substance is called non-combustible substances. And examples are iron, stone, these are the glass, these are the main examples of non-combustible substances. ठीक है, तो ये था आपका combustion और combustible substances. The next topic of this combustion is product of combustion. What will you get in the last stage of combustion? What will you get in the end of reaction? Because combustion is a chemical reaction. ठीक है, this is a reaction in which you get heat and light plus some products जो आपको फाइनल आपके हाथों में आते हैं. ठीक है, ऐश, हम बोल सकते हैं कि ऐश भी हमें मिलती है अगर हम कोल को बर्न करते हैं. ठीक है, बट उन्हीं फाइनल प्रोडक्ट्स की बात हो रही है. बट वो ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपको हर बार मिलते हैं. क्या आपको पेट्रोल बर्न करने के बाद ऐश मिलती है? नहीं, हमें ऐश नहीं मिलती वहां पर. तो हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बताने होंगे जो हर बार हमें मिलते हैं. वी गेट एवरी टाइम. दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. These two products are always present at the end of combustion. जब भी combustion होगी किसी सब्सटेंस की, तो आपको लास्ट में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देखने को मिलते हैं. We can take example. हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. For example, we have methane. So, normally combustible substances are made up of hydrogen and carbon. और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फ्यूल्स. जो फ्यूल्स है वो हाइड्रोजन और कार्बन के ही बने होते हैं. तो यहां पर आप देख सकते हो कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, और जो ये मॉलिक्यूल मैंने यहां पर लिखा है मीथेन का है. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन इज CH4. ओके, C4 कार्बन, H4 हाइड्रोजन. हाइड्रोकार्बन है ये. ठीक है ना. अगर हम इसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, तो हमें मिलती है वाटर, CO2 प्लस लाइट प्लस हीट. लाइट और हीट तो रिलीज हो जाएगी, बट व्हाट विल यू गेट इन द एंड? आपको लास्ट में क्या मिलेगा? आपको मिलेंगे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. ये हर बार मिलने ये लास्ट प्रोडक्ट है आपके, ये प्रोडक्ट्स हैं आपके कंबशन के. ठीक है, बट ये अभी बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर देते हैं. यहां पर हम टूल लगा देते हैं और जो राइट हैंड साइड है आपकी, वहां पर हम मेंशन कर देते हैं 2H2. ठीक है, अब ये बैलेंस है.
बट what will happen if we double the molecule of methane? अगर हम इसको डबल कर देते हैं, ठीक है, लेट्स सी, डबल कर दिया हमने इसको, 2 मॉलिक्यूल ले लिए मीथेन के, बट हम यहां पर डबल ना लेके सिर्फ एक मॉलिक्यूल इंक्रीज करते हैं ऑक्सीजन का। मतलब अगर यहां पर 2 मॉलिक्यूल थे ऑक्सीजन के तो यहां पर 3 ले लेते हैं, ठीक है। इसको डबल नहीं किया हमने, इसको डबल ना करके हमें लॉस है। लॉस क्यों है? क्योंकि हमें एक ऐसी गैस मिलने वाली है जो लीथल गैस है। ये देखो, वी विल गेट नॉट CO2, वी गेट कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। और वो भी 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं CO के, क्योंकि मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है 2 प्लस 4H2O प्लस लाइट प्लस हीट। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है? क्या प्रॉब्लम हो गई है आपको CO मिलने से? CO इज अ लीथल गैस। अगर ये आप इनहेल कर लेते हो तो ये आपके हेमोग्लोबिन से अटैच हो जाती है, और अगर ये हेमोग्लोबिन से अटैच हो गई तो ये फिर अलग नहीं होती। अलग होना चाहिए, अलग नहीं होगी तो उसमें ऑक्सीजन दोबारा नहीं मिल पाएगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इनकम्प्लीट कंबशन हुई है। जब भी आपकी ऑक्सीजन कम होगी, इनसफिशिएंट होगी, तो वो उसको हम इनकम्प्लीट कंबशन बोलते हैं, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन की कमी रह गई है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। दिस टाइप ऑफ कंबशन इज इनकम्प्लीट कंबशन। ये है आपकी इनकम्प्लीट कंबशन। और जो ऊपर हमने एग्जांपल लिया है ये आपके कंप्लीट कंबशन का है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, अबंडेंट ऑक्सीजन यहां पर प्रेजेंट थी। तो जब भी कंबशन होनी चाहिए, कंबशन शुड बी कंप्लीट, नॉट इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट कब होती है? जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी कब होती है? जब हम रूम बंद कर देते हैं। जब रूम क्लोज कर दोगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमें वो नहीं करना है, हमें कंप्लीट कंबशन ही करनी है, हमेशा कंप्लीट कंबशन होगी। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। नेक्स्ट है कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। कंबशन के लिए भी कुछ कंडीशन है। जैसे हमें पढ़ने के लिए कुछ कंडीशन है कि हमें एक साइलेंट रूम चाहिए, कंसंट्रेशन होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, बुक्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, पेन पेंसिल होनी चाहिए, तब आप बहुत इजीली स्टडी कर पाते हो। तो कुछ ऐसी कंडीशन हमारे कंबशन के लिए भी है कि उनको भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। तो अगर वो रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है तो ही बर्निंग होगी, अदरवाइज बर्निंग ही नहीं होगी। फर्स्ट मैं कंडीशन मेंशन कर देता हूं कि वो कौन सी कंडीशन है जब आपकी कंबशन होती है। पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। इसका कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, तभी तो जलेगा। अगर आप यहां पर स्टोन लाके रख दोगे तो स्टोन तो नहीं जलने वाला, आयरन नहीं जलेगा, आयरन विल नॉट बर्न। सो यू शुड बर्न कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। हमें कंबस्टिबल सब्सटेंसेस का बर्न करना बहुत जरूरी है, तभी कंबशन होगी, अदरवाइज कंबशन नहीं होगी। बहुत सिंपल। स्टूडेंट होगा तभी पढ़ाई होगी, अगर स्टूडेंट्स ही नहीं होगे तो स्टडी कैसे होगी, ठीक है। तो पहला ये है कि कंबस्टिबल सब्सटेंसेस का होना बहुत जरूरी है। नंबर टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो भी कंबशन नहीं होगी। अगर आपके सामने वुड है, इफ यू हैव फ्यूल, इफ यू हैव पेट्रोल, इट विल नॉट बर्न अंटिल, जब तक उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं होगी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हमेशा रिएक्शन होती है, आप देख सकते हो। अगर ऑक्सीजन है तो रिएक्शन है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। आप इसके लिए हमारे पास एक्टिविटी भी है। आप एक कैंडल लो, उस कैंडल को बर्न करो। अगर उस कैंडल के ऊपर आप एक टम्बलर, एक ग्लास रख दोगे तो मोमबत्ती बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाती है, और ऑक्सीजन ना होने की वजह से कैंडल बर्न नहीं कर पाती। तो इसलिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज द सेकंड कंडीशन दैट इज नेसेसरी फॉर कंबशन। नंबर थ्री की बात करते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। ये आपके लिए नया है, इग्निशन टेम्परेचर। ये नया क्यों है? क्योंकि शायद वर्ड पहले कभी आया नहीं है, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर इज द लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। जिस तक आपको उसको हीट करना पड़ेगा ही। ये वो लिमिटेड सब्सटेंस है, वो लोअर सब्सटेंस है जिस तक आप उस सब्सटेंस केमिकल कंबस्टिबल सब्सटेंस को बर्न करते हो, और तब जाके वो बर्न होता है। अगर आपके सामने वुड है, क्या वुड ऑटोमेटिकली बर्न हो जाएगी? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बर्न करना पड़ेगा। अगर मैं उसके सामने मैच स्टिक लेके जाता हूं, क्या मैच स्टिक से बर्न हो जाएगी वुड? शायद नहीं होगी, क्योंकि उसको ज्यादा टेम्परेचर है, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो ज्यादा है, ठीक है। उसको 60, 70, 80, 90 डिग्री तरह टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाके आपकी वुड बर्न होती है।
तो उसके लिए आपको शायद एलपीजी स्टोव के ऊपर उसको रखना पड़े, तब जाके वो बर्न होगी। ठीक है, अगर पेपर के मेरे हाथ में पेपर हो और पेपर के पास मैं स्टिक लेके आता हूं तो पेपर जल जाएगा, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर एज कंपेयर टू वुड काफी कम होता है। ठीक है, सो इग्निशन टेम्परेचर क्या है, वो लोएस्ट टेम्परेचर है जिस तक हमें उस कंबस्टिबल सब्सटेंस को हीट करना ही पड़ेगा अगर उसको जलाना है तो। अगर उसको नहीं करोगे तो बर्न ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये है आपका इग्निशन टेम्परेचर, और ये डिफरेंट सब्सटेंसेस का डिफरेंट होता है। इस मार्कर का जो मेरे हाथ में मार्कर है, इसका कंबस्टिबल सब्सटेंस, इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो डिफरेंट है। ये वुड से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए जितने भी आपके कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं, पेट्रोल, डीजल, कैंडल, सबका इग्निशन टेम्परेचर अलग है, और आपको उस इग्निशन टेम्परेचर तक उसको गर्म करना होगा। यू हैव टू हीट अप टू दैट लोएस्ट टेम्परेचर, जब तक वो जल नहीं जाता। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। ये 3 कंडीशन लिखी है, अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी नहीं है तो भी कंबशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिसका इग्निशन टेम्परेचर काफी कम होता है, उसको हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। जैसे कि एलपीजी, कैरोसिन, पेट्रोल, इनका इग्निशन टेम्परेचर काफी कम होता है, इसलिए वी हैव टू टेक केयर व्हेन वी आर बर्निंग दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। हमें बड़ा ध्यान देना है, ठीक है, जब भी हम इन चीज़ों को हैंडल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव कैरोसिन और इफ़ यू हैव पेट्रोल इन योर बॉटल, तो बड़ा ध्यान से रखना है उसको, क्योंकि इसका इनिशियल टेम्परेचर कम है। जरा सी गर्मी मिलने के बाद ये बर्न हो सकते हैं और वो आपको लॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम परफ्यूम का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, आपके जो डिओड्रेंट्स होते हैं, डिओड्रेंट्स के पीछे एक साइन होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी द लोगो ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक लोगो बना हुआ है, ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस का है, कि जो इसके अंदर जो लिक्विड है वो इनफ्लेमेबल है। अगर वो फायर के कॉन्टेक्ट में आता है तो बर्निंग शुरू हो सकती है, कंबशन हो सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंबशन, कि कंबशन की कितनी टाइप्स होती हैं। कंबशन 3 टाइप्स की होती है, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, और थर्ड है एक्सप्लोसिव कंबशन। कौन कौन सी है? रैपिड, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोसिव। रैपिड कंबशन किसको बोलते हैं? जैसे ही हमने किसी पेपर को, अगर मान लो पेपर का एग्जांपल लेते हैं, अगर पेपर की बर्निंग हम मैच 6 से स्टार्ट करते हैं और वो जलना शुरू कर देता है, तो ऐसी कंबशन को हम रैपिड कंबशन बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हम व्हाइट फॉस्फोरस की बात करते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो है 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस अगर उसको मिल जाए तो बर्निंग शुरू कर देता है। अगर रूम टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, अभी रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस का है, अगर ये इंक्रीज हो जाए 25 से 35 हो जाए, तो इसको अलग से हीट देने की जरूरत नहीं है, इट विल बर्न ऑटोमेटिकली, अपने आप स्टार्ट कर देगा, इसके अंदर आग लग जाएगी अपने आप। तो ऐसी हम कंबशन को स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं। इसके बाद आती है एक्सप्लोसिव कंबशन। एक्सप्लोसिव कंबशन वो कंबशन होती है जिसमें हीट तो हम देते हैं, हम बर्न करते हैं, बट बर्न करने के बाद हीट और लाइट के साथ एक एक्सप्लोजन होता है और उसमें साउंड निकलता है, जैसे कि क्रैकर्स, हम जो पटाखे चलाते हैं उसमें भी यही होता है। तो वो आपकी एक्सप्लोसिव कंबशन में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे वीडियो। टुडेज लेक्चर के लिए सफिशिएंट है इतना कि हमने किया कंबशन, प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन, कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, इन द लास्ट वी हैव डन टाइप्स ऑफ कंबशन।